We know very well about the environment. Vatavaran. First of all, I want to tell all the audience, teachers, if the seats are vacant in the front, then please front. अगर आगे का सीट खाली है तो पीछे से उठकर आगे आ जाए और आगे का सीट को फुल करें। टीचर्स पीछे से उठकर आगे आए और अपने स्थान पर जो जहां थे वहीं आ जाए। Now I'm not going to recall again and again. Environment. We know very well what is environment. Environment क्या होता है, वातावरण क्या होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आज हम लोग इस सेशन में कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ इस विषय पर हम लोग बातें करेंगे। We will share the knowledge. So let's start the first session of today. Now today is 18/3/2023 and it is the first session of this day, which is held by the given name. So let's start the session. First of all, here is what is environment. What is environment? वातावरण क्या है? तो we know very well the things which are around us, वो चीज जो हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं, वो सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। Here is given an environment is everything that is around us. जो हमारे अराउंड में है, हमारे सराउंड में है, जो हमारे चारों तरफ जो चीज है, वो सभी इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। Which include, we know very well around us there is only two components. One is biotic and second one is abiotic. We are surrounded by these two components. हम लोग इन्वायरमेंट में यही दो कंपोनेंट से घिरे हुए हैं। या तो हमारे अराउंड में बायोटिक होगा या तो हमारे अराउंड में एबायोटिक होगा, which include both living and non-living things such as soil, water, animals, and you know very well, we all are teachers. What object will come in living beings and which object will come under non-living beings? We know very well. So here is written living and non-living, and just I have told you biotic and abiotic. Only the name is changed, but the sense is different. Example is different, means is different. Sorry, all are the same. Name is different, but sense, definitions, meaning, all are the same. Biotic, living, abiotic, non-living. Environmental education. What is environmental education? In the second class, I have taken value of significance. यानी कि मूल शिक्षा के बारे में हमने सेकेंड क्लास में डिस्कशन किया था, उस पर हमने ट्रेनिंग लिया था। तो यहाँ पर हमारा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है। तो
तो we all teach our students that we have to keep our environment safe, clean, disease free. हम लोग सब अपने घर के बाहर सुबह में शाम में झाड़ू मारते हैं। हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं वो सुबह शाम रोडों की सफाई करते हैं, एक समय आने पर नालों की सफाई करते हैं। तो दिस ऑल कम अंडर द एनवायरमेंटल एजुकेशन। We teach the student that how we can clean our environment. हम लोग बच्चों को बोलते हैं there is a dustbin. We have to throw the garbage on the dustbin, not on the road, not on the moon. We always see rule given by the government that पूरा कचरा फेंकते पाए जाने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा, 1000 का जुर्माना लगेगा। तो the government also teaches us कि that it is a beautiful planet where we live. ये एक बहुत ही सुंदर ग्रह है जहां हम लोग रहते हैं। And we have to keep it clean, not by fear. It is our responsibility. जैसे कि एग्जाम्पल है, हेलमेट नहीं पहनने पर या ट्रिपल लोडिंग चलने पर चालान कटती है, हेलमेट नहीं पहनने पर फाइन लगता है। तो if we are not wearing a helmet and just suppose that accident happened, then it is not loss for the government, it is loss for me, it is loss for us, that we have lost 1, 2 या 3 members of our family या another family. इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होता जितना हम लोग को खुद का नुकसान होता है। हम लोग अगर एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, अपने घर के आगे साफ सुथरा रखेंगे, उससे ज़्यादा फायदा किसे है? हमें है। We all are disease free. हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे। हमारे घर के सामने मान लीजिए नाला है, ड्रेनेज है, गड्ढा है, बारिश हुई, पानी जम गई एंड हम लोग उसे साफ नहीं कर रहे हैं, तो we know very well if the water is stored for a long time then it is a house of mosquitoes. अगर लंबे समय तक कहीं पर पानी जमा हुआ है तो वो घर बन जाता है मॉस्किटो का। एंड इफ इट इज द हाउस ऑफ मॉस्किटो, अगर वो मॉस्किटो का घर है, देन मॉस्किटो, जब मॉस्किटो का घर ये है तो उसका जो भ्रमण स्थान होगा, जो घूमने का स्थान होगा, वो आपका घर होगा, जहाँ वो आएगा, प्यार से डंक मारेगा, ब्लड को सक करेगा और डिजीज फैलाकर चला जाएगा। उससे अगले को प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमें प्रॉब्लम है। तो we have to keep our environment clean. We have to give a knowledge to the student that we have to clean our environment from which I am getting the profit. प्रॉफिट हमें तो मिल रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट किसे मिल रही है? तो हमारे इन्वायरमेंट को भी मिल रहा है, हमारे गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। अगर इन्वायरमेंट क्लीन है, डिजीज फ्री है, जैसे कि हम लोग अभी कुछ समय पहले 2020, 2021 में हम लोग का 2 साल विद्यालय बंद रहा कोविड-19 के कारण। सरकार ने तरह तरह के योजनाएं चलाई
उनका कहना है मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और कोविड को दूर भगाएं। उनका तो ये कहना था, अगर उस पर हम अमल नहीं करते हैं, इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, then we are losing our life. And we are losing our life, it means environment is also in a danger. वातावरण भी क्या है? खतरे। अब बोला सर हम लोग अपने जीवन को लॉस कर रहे हैं तो वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ गया, उस पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हार्बीवोरस वैसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं, कार्निवोरस जो हार्बीवोरस को खाता है, और ओमनीवोरस यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों हैं। जस्ट सपोज दैट बीच का एक जो इंटरचेंज है ना, हार्बीवोरस, जस्ट सपोज दैट वो है ही नहीं। हार्बीवोरस हमारे प्लैनेट पे नहीं, हमारे अर्थ पे नहीं। तो जब हार्बीवोरस हमारे अर्थ पर नहीं है तो who will eat the plant? Who will clean the plant? और जब हार्बीवोरस अर्थ पे है ही नहीं तो कार्निवोरस खाएगा किसको? क्या पेड़ पौधों को खाएगा? तो प्लांट का जो नंबर है वो ग्रो करेगा और कार्निवोरस का संख्या क्या होगा? डाउन होता जाएगा, जिससे हमारे इकोसिस्टम पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो वी हैव टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। हम लोग को अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। फॉर क्यों भाई? तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, डिजीज फ्री रखने के लिए। Which topic will be included in these sessions? What is environmental education? So just now I have told about the environmental education. Aims of environmental education, उसके क्या aims हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, मेजर इन्वायरमेंटल इशू एंड कंसर्न, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर्स ऑफ इन्वायरमेंट, मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, व्हाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द डे एंड रोल ऑफ टीचर इन द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। These are the few topics which we cover in this season. So this one I have told you why we have to know about why we will give knowledge to the student about the environmental education. Environmental education is a process that allows individual to explore environmental issues, engage in problem solving, take actions to improve the environment. These all topics just I have discussed. It is the responsibility of all the individual, not we will solve it in a group. हम लोग इसे ग्रुप में सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसे अपना इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। As a result, individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have a skill to make informed and the responsible decisions. And after that, we will take the responsible decisions. How we can, what step we can take to save our environment. हम लोग कौन सा डिसीजन लेंगे अपने environment को सेव करने के लिए? एम्स ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इशू का एम, उसके क्या एम है? बोलता है कि एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एम क्या है?
इसका लक्ष्य क्या है? तो जस्ट ही सेइंग दैट कि इसका एम है, इसका लक्ष्य है कि हमें लोगों के बीच में जागरूकता लाना है। We will create a awareness among the learners, among the society, among the students. Aims of environmental education is to increase public awareness about environmental issues, explore possible solutions, and to lay the foundation for the fully informed and active participation of individuals in the protection of environment and prudent and rational use of natural resources. Just I have told that it is our responsibility to keep the environment clean. We have to take participate. अब ये नहीं, अगर environment को सही रखना है तो suppose if we are crossing our road which are in our society, just suppose that हमारे सोसाइटी में जो रोड है उसको क्रॉस कर रहे हैं and I saw there are some garbage, here is some garbage, then don't think so that ये तो गार्बेज है ना, वो तो उनके मकान के सामने फेंका हुआ है प्लास्टिक में करके, उसको हम उठाकर क्यों रखें? तो यहाँ पर हम लोग को एक अपना मूल सिद्धांत, एक अपना मोरल एजुकेशन होने चाहिए, एक अपनी नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। इफ ही इज नॉट अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, if he or she is not aware about the environment, it means what? I will also not. No, we have to aware about the environment. I will take it and put it into the garbage. और उससे क्या करेंगे? गार्बेज में रख देंगे। By which we can just have an individual. I am alone. I am alone individual taking the participations for cleaning the environment. To take the packet of to take the garbage packet and keep in a dustbin. I am alone. अब मुझे देखकर it may be जिसके घर के सामने वो फेंका हुआ है उसे हम उठाकर गार्बेज में रख रहे हैं, तो it may be it happen that he or she feel guilty. ये हो सकता है कि वो guilty महसूस करे and from the next time he feel guilty to throw the garbage on the road. You think that no, I will keep it in a dustbin by which we can save our environment. Objective of environment education. To what are the objective? So here is given objective of environment education. Awareness, to create awareness among the peoples, लोगों के बीच में हमें जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। We know that there is one party whose symbol is झाड़ू। हम लोग को पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका सिंबल झाड़ू तो नहीं है, लेकिन कभी कभी या फिर आप लोग देखते होंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा स्वच्छता अभियान लागू किया जाता है। तो वो स्वच्छता अभियान लागू क्यों किया जाता है? कि जिस रोड पे हम स्वच्छता अभियान लागू कर रहे हैं, सिर्फ उस रोड को साफ करने के लिए नहीं, ये अभियान लागू किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि दैट वी हैव
its own modal language to keep our surrounding. ये हमारा खुद का सोच होना चाहिए, हमारा नैतिक ज्ञान होना चाहिए, हमारा मूल शिक्षा होना चाहिए कि हम अपने अराउंड क्या करें, क्लीन करें. After that, attitude, skill, participations, वृक्षारोपण means we have to plant. हम लोग छोटे पौधे को रोड के किनारे क्या करते हैं, प्लांट करते हैं. तो if we are planting the tree, it means what? It means that we are saving our environment. हम लोग environment को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. कैसे सेव कर रहे हैं? तो we know very well that population is increasing rapidly. जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है. And if the population is increasing rapidly, then deforestation will also occur rapidly. Deforestation भी बहुत तेजी से बढ़ेगा. And when the plant is not on the earth, not on the ground, then from where we will take oxygen? हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? हम लोग सिर्फ CO2 को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे. And if the plant is not here, then who will take CO2? Who will absorb CO2? CO2 को लेगा कौन जब प्लांट रहेगा ही नहीं? एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो वार्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा. जो भी ग्लेशियर है वो मेल्ट होता जाएगा. तो डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, प्लांट, if we are planting the tree, it means we are also saving the environment. Here is last one, participation. Participation means भाग लेना. बहुत से लोगों का ये सोच होता है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है तो हम उसमें भाग क्यों लें. हम तो अपने घर में झाड़ू मारते ही नहीं हैं, तो रोड पे जाके झाड़ू क्या मारते हैं. बहुत से लोग का ये थिंकिंग होता है, वो मेल हो या फीमेल हो. तो इफ एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग ऑन to save our environment, to save the environment, then it is our responsibility to participate in this activity. Due to this, if I am taking the participations, if you are taking the participations, then your generation will also aware about the environment. है मम्मी पापा तो किसी तरह के सरकार के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. पापा तो अब तक वोट देने गए ही नहीं, तो हम क्यों जाए वोट देने. ये प्रक्रिया फिर आपका चलता रहेगा. पापा तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वृक्षारोपण होता है, साफ सफाई होता है, वातावरण को दूषित ना करने का जो भी स्कीम चलता है, उसमें तो ये पार्टिसिपेशन लेते ही नहीं है, बल्कि उनके अगेंस्ट में बोलते हैं. तो हम क्यों फेवर में बोले. तो इफ आई एम टेकिंग द participations, if you are taking participate, then your generation will also take participate to keep the environment clean. A scope of environment education. To what are the scope? Environmental pollution and its control. हम लोग जान रहे हैं कि environmental pollution तो ज़्यादा ही हो रहा है. Soil pollution, water pollution, noise pollution, sound pollution, these all, और ये सब जो है noise है. वैसे तो noise sound और सेम ही है, हम अलग अलग करके बोलेंगे. साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सभी जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. हाउ वी कैन कंट्रोल इट, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं.
You know very well. Just I have told that if the population will increase, अगर जनसंख्या बढ़ेगा, then the transport vehicles will also increase. And if the vehicles will increase, transportation will increase, then carbon monoxide will also increase. जितना ज़्यादा गाड़ी चलेगा उतना ज़्यादा धुआं मिलेगा, और जितना ज़्यादा धुआं मिलेगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को साफ तो करेगा नहीं, गंदा ही करेगा। बात सही है ना? जितने ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर आएंगे उतने ज़्यादा तो इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे नहीं, उतने ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? खराब करेंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहले तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो भी ऑटो होते थे वो सीएनजी में चलते थे, अभी भी चलते हैं। पेट्रोल डीजल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही कम मात्रा में है। धीरे धीरे हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑटो जो है वो सीएनजी पर चलने वाला आ रहा है। यहाँ पर इको फ्रेंडली रिक्शा फ्रॉम दैट transportations we can't harm our environment because it is eco-friendly. वो eco-friendly है, वो ना स्मोक देता है ना साउंड देता है, then how it will harm the environment. तो first one is this environmental pollution and its control. How we can control it? हम लोग पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने बहुत पहले चलाया था कि if you are using a poly bag, if you are going to market for taking a vegetable, and if you are using if the shopkeeper is using a poly bag, polythene इसको बोलते हैं, ठीक है, then fine will be taken by that shopkeeper. अगर आप प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं तो दुकानदार से फाइन मिल जाएगा। अगर पकड़े गए तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि पेपर का झोली चलता था, कुछ समय के लिए प्लास्टिक क्या हो गए थे? बैन हो गए थे। क्यों बैन हो गए थे? क्योंकि हम लोग का आदत है, इट इज अ हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मार्केट गए, कुछ मान लीजिए सब सामान लिए, एक पॉली बैग भर गया, एक प्लास्टिक भर गया, तो खास करके ये लेडीज़ों का आदत होता है कि थोड़ा सा मिर्चाई दीजिए ना ₹2 के, अब उसके लिए वो अलग प्लास्टिक ले लिए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। घर में गया प्लास्टिक, सामान बाहर निकला, प्लास्टिक रोड पर गया, एंड इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये तो मिट्टी के साथ भूलेगा नहीं। एंड जस्ट सपोज दैट हमारे घर का कैटल्स, मवेशी, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, तो जस्ट सपोज काउ इज ग्रेजिंग द ग्रास। अब गाय घास चल रही है एंड काउ विल ईट द प्लास्टिक। अगर वो प्लास्टिक खा गई तो उसके गला में जाकर क्या हो जाएगा? वो चिपक जाएगा। और अगर उसके गला से वो ना निकला तो इन दैट केस द कैटल विल बी डाई, वो मर जाएगा। देन व्हाट? हमने इन्वायरमेंट को हार्म कर दिया। वो नहीं खाया, ठीक है, मिट्टी में गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सॉइल पॉल्यूशन कर दिया, वो मिट्टी को दूषित कर दिया। तो अगर वो मिट्टी को दूषित किया, इट इज व्हाट? इट इज आल्सो अ काउज, इट इज आल्सो अ रीजन टू हार्म द एनवायरनमेंट। सेकंड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, हम लोग उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं। तो
natural resources. That resources we are obtained from nature, जो हमको नेचर से मिलता है। हम लोग सुनते होंगे, चाहे बच्चों को सिखाते होंगे, if you are brushing, then turn off the tap, नल को बंद कर दो, नल को खोले बंद कर दो। If you are washing, then take a help of bucket and a mug, not a shower. क्यों नहीं? Because we have to save the water. हम लोग को पानी का क्या करना है? बचत करना है, सेव करना है। क्यों? Because our generations, our future generations, there is no scarcity of water. हमारे आने वाले जनरेशन्स को पानी की कमी ना हो। तो we have to conserve our natural resources, petrol, diesels, water, gases. We have to conserve it. हम लोग को इसे बचा कर चलना चाहिए। Environmental education (EE) is very important for the child and adult for self-fulfillment and social development. Just I told environmental education जो है वो social development है। हम लोग अपने आप को तो उससे फायदा कर ही रहे हैं। अभी हमने बताया था कि किसी के घर के सामने रखा है, उसको उठा कर हमने डस्टबिन में रख दिया, तो उससे हम अपने आप को फायदा नहीं किए, बल्कि अपने सोसाइटी का फायदा किए। जस्ट आई एम प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी, जस्ट आई एम प्रोटेक्टिंग आवर सोसाइटी, नॉट ओनली माई सेल्फ। एम आई राइट रूबी मैम? रूबी रानी मैम, इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। ये लाइफ और हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करता है, बचा कर रखता है। जस्ट आई टोल्ड ना, इकोसिस्टम को बैलेंस करना, इकोसिस्टम को बैलेंस करना। हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, all are interdependent. In the yesterday sessions, I have told about the food chain. फूड चेन के बारे में बताया था कल के सेशन में। इट मीन्स व्हाट? फूड चेन वही वाला घास को खरगोश खाया, तो उसी प्रकार से यहाँ है, ठीक है? कार्बी, कार्बी, ओमनी, ट्री, प्लांट, दिस दैट, ठीक है? दिस ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड वी ऑल हैव टू सेव आवर इन्वायरमेंट। We have to create awareness to keep our society clean. It helps us to understand different food chain and the ecological balance in the nature. See, the topic is given here. It helps us. Environmental education जो है वो हमें सहायता करता है। For what? Different food chain. अब ऐसा नहीं कि food chain एक ही होता है, फूड चेन डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट तरह के फूड चेन होते हैं। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, जस्ट आई टोल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस, पेड़ पौधे को हार्बिवोरस, कार्निवोरस, अब एक दूसरे को खा रहा है, खाकर मिट्टी में सड़ कर रहा है, ठीक है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट हाउ द एनवायरनमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लिविंग एंड फॉर प्रमोटिंग अ मटेरियल कल्चर। And if we are saving our environment, if we are saving our environment, it means what? We are making the environment where we can live disease free. अगर हम लोग अपने environment को साफ रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम उस सोसाइटी को साफ रख रहे हैं जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां हम लोग डिजीज फ्री रह सकते हैं, बीमारियों से कोसों दूर। Am I right, sir? उदय सर के पीछे सर है। Environment education
should emphasize the complexities of environmental problem and critical thinking of problem solving skill. अगर डायरेक्ट कोविड आ गया तो उससे सरकार उठकर भाग नहीं गया, उसके सामने नई चुनौतियां हैं। We face difficulties, but we have a critical thinking that how the government will face this type of problems. उसने critical thinking के माध्यम से इस महामारी का, इस समस्या का हल निकाला। Environment education should emphasize the importance of sustainable development, that is economic development without degrading the environment. It means it says that economic development, आर्थिक विकास, हम आर्थिक विकास कर रहे हैं without degrading the environment, environment को बिना क्षति पहुंचाए हुए। It should enable learner to include environmental impact analysis in proposed development projects in order to maintain environmental damage. We have to aware about the different projects by which we can protect the environment for getting a damage. हम लोग को तरह-तरह के प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मेजर एनवायरमेंटल इशू एंड कंसर्न, फर्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। अब ये वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है? क्या ऊपर से भगवान आते हैं पानी को गंदा करके चले जाते हैं? नहीं, all are the destructor of the environment. environment को हम लोग जो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल है, नहीं भी all हम लोग सभी इसके डिस्ट्रक्टर हैं। अभी हमने पॉलीबैग की बात कही, अब जिसका मान लीजिए मकान जो है छोटे मोटे नदी के किनारे है, पोखर तालाब के किनारे है, उसने क्या किया, घर के कचरे को प्लास्टिक में बांधा और छत पे चढ़ के नदी में फेंक दिया। तो उससे तो हमारा वाटर शुद्ध तो होगा नहीं, अशुद्ध ही होगा, पॉल्यूट ही होगा। और ये स्पेशली जो है हम लोगों को देखने को मिलता है गाँव में। गर्मी का समय आया नहीं कि उनके मवेशी नदी में चल के धुलने के लिए, रगड़ रगड़ के नाले की गंदगी साफ हो रही है। कहाँ हो रही है? तो नदी में हो रही है। तो who is polluting? The river. We are polluting. Not वो एनिमल नहीं गंदा कर रहा है, तो उसको तो ले जाने वाले हम ही हैं। भगवान ने दो तरह बनाया, एक जानवर और एक इंसान। नॉलेज एब्सॉर्ब करने की शक्ति हमारे पास है, इसीलिए लोग बोलता है अगर तुम ये नहीं सीख पाओगे तो तुम तो जानवर से बदतर हो, तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम जानवर से बदतर हो। वो तरह का जो थिंकिंग गॉड ने दिया है वो सिर्फ ह्यूमन्स को दिया है, जानवरों को नहीं दिया। तो वी आर polluting the water, not the cattle. Second one is air pollution. अब air pollution क्या है? तो अभी हमने कहा कि if the population will increase, the houses will also increase. घर भी बढ़ेंगे, कारखाने भी बढ़ेंगे। अगर घर बढ़ रहे हैं तो घर बनाना तो पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो उसके लिए ईंटा बालू सभी सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी
इट मीन्स व्हाट, उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है। एंड इफ द क्वांटिटी इज ग्रोइंग, सबको पता होगा कि इफ वी आर मेकिंग अ ब्रिक, अगर हम लोग ईंटा बना रहे हैं तो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द सॉइल, वी आर गेटिंग द सॉइल फ्रॉम आवर फील्ड। कहाँ से ले रहे हैं? अपने खेतों से ले रहे हैं, और अपने खेतों से ले रहे हैं तो इट मीन्स जस्ट वी आर टेकिंग द फर्टाइल सॉइल टू मेक द ब्रिक। हम लोग वो जो फर्टाइल सॉइल है, जो बंजर जमीन है या जो उपजाऊ जमीन है, उसकी मिट्टी को हम ले रहे हैं। अब वो जमीन किस काम का? किसी काम का नहीं। अगर उस लैंड में हमने किसी प्रकार का कोई फसल ग्रो किया तो वो तो लेवल पे है नहीं, क्योंकि उससे हमने तो मिट्टी निकाल लिया। अब जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उसमें क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। एंड इफ वी आर growing any type of plant in that field and water is stored in that field, it means what? Crop will die. Crop क्या होगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर भी किसी न किसी तरह से we are destroying our environment, हम लोग environment को destroy कर रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे जहाँ bricks बनते हैं, जहाँ ईंटा बनता है, in Hindi we are saying भट्ठा, ईंटा भट्ठा। तो जब ईंटा बनता है ऊपर से क्या निकलता है? अमृत तो निकलता नहीं है, स्मोक निकलता है। जो इतने ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? स्मोक दे रहे हैं। अब ये डायरेक्टली जो स्मोक है वो तो हमारे और आपके घर में नहीं जा रहा है, वो तो पूरे कहाँ जा रहा है? इन्वायरमेंट में जा रहा है। और इन्वायरमेंट के माध्यम से कहाँ जा रहा है? हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में जा रहा है, जिससे गुर्दा गुर्दा सब बर्बाद हो रहा है। सेकंड वन इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट के परिवर्तन के बारे में। अब जैसे कल की बात कर लेते हैं, परसों की बात कर लेते हैं। परसों का जैसे कि परसों की बात करते हैं, परसों मौसम बड़ा अच्छा था। अरे सुनिए तो, बीच में टोकते क्यों हैं? और कल का मौसम मॉर्निंग का बड़ा बेईमान था, लेकिन यही अगर शाम की बात करें तो बड़ा खतरनाक था। जो लोग ट्रांसपोर्ट से, बाइक से सफर कर रहे होंगे, या तो वो रुक गए होंगे, या तो जो बाइक से सफर कर रहे होंगे या तो वो रुक गए होंगे, और अगर आंधी तूफान में हाईवे दिखा रहे होंगे तो छूट गए होंगे, यानी गिर गए होंगे। क्योंकि कल जो संध्या के समय आंधी तूफान आया, उसके बाद जो बारिश हुई, अभी मान लीजिए कि जहाँ तक हमें नॉलेज है, चना का खेती का समय चल रहा है, क्या होता है ना? हाँ, चना मसूरी धूप हुई है, और अगर भगवान मेहरबान हो गए, लगातार 3-4 दिन तक बारिश हो गए, तो फसल तो गया। अब जब फसल गया, वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वी कांट से, बट इनडायरेक्टली इट आल्सो हार्म द एनवायरनमेंट। वो भी क्या किया? एनवायरनमेंट को हार्म किया। तो ये हमारा है क्लाइमेट चेंज। Environmental issue and concern. What are the environmental issue? Just I am going to water pollution सबसे पहला है। इसके काउजेस क्या हैं? वाटर पॉल्यूशन के क्या काउजेस हैं? तो here are the few causes
ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का कुछ कारण है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू नियरबी सोर्स ऑफ वाटर, बात तो सही है। We know very well all the industry grow near the water bodies। जितने भी इंडस्ट्री होते हैं वो सभी ग्रो होते हैं, खड़े होते हैं कहाँ? नियर द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के नजदीक में। क्यों? वाटर द रीजन दैट इंडस्ट्री ग्रो नियर द वाटर बॉडीज। अब भाई इंडस्ट्री वाटर बॉडीज के नजदीक में ग्रो कर रहा है, उसको जो पानी की आवश्यकता है बहुत इजीली उसको क्या कर सकता है, वहां से ले सकता है। और उससे जो निकलने वाली गंदगियां हैं उसको कहीं लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरग्राउंड के माध्यम से उसमें क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। एंड आई थिंक फ्रॉम टुमारो आई विल सेट फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। कल से टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन भी सेट कर दिया जाएगा, जो लास्ट में आप लोग को असाइनमेंट के तौर पे दे दिया जाएगा, तो ज़्यादा मजा आएगा सुनने में। सेकेंड, इम्प्रोपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज। जैसा कि हमने कहा था कि गांव में गर्मी आते ही लोग अपने मवेशी को नदी में लेकर चले जाते हैं। अब जस्ट सपोज नदी में लेकर गए, गाय भैंस को धो रहे हैं, बैल को धो रहे हैं, और उसने डंग दे दिया हमें। अब उसको तो हाथ में छान कर बाहर तो लाएंगे नहीं, उसको तो हाथ में छान कर बाहर लाएंगे नहीं। Where it will drop? It will drop on the water. Drop on the water. It means what? We are polluting the environment. हम लोग सही तरीके से एनिमल वेस्टेज को इंपोज नहीं कर पा रहे हैं, पानी में छोड़ दे रहे हैं। देखिए काऊ डंग जो है, अभी हमने कहा कि ये पानी को पॉल्यूट किया, लेकिन काऊ डंग जो है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट काऊ डंग, ये भैंस बकरी का नहीं। तो गाय का गोबर जहाँ पानी को पॉल्यूट कर रहा है वहीं पूजा में इस्तेमाल भी हो रहा है। गाय भैंस का गोबर जो है जहाँ पानी को पॉल्यूट कर रहा है वहीं खेत को फर्टाइल भी करता है। खेत को क्या करता है? फर्टाइल भी करता है। हम लोग सब तरह की चीज को बेचते हैं, देखते हैं, पेन बिकता है, पेंसिल बिकता है, काऊ डंग केक बिकता है, जिसको हम लोग गोइठा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि गाय का गोबर बिकता है, उसका गोइठा बनाकर तो बिकता ही बिकता है, गाय का गोबर बिकता है। क्यों? गोइठा बनाने के लिए नहीं, टू फर्टाइल द लैंड ऑफ द फील्ड, फील्ड के जमीन को फर्टाइल करने के लिए, जिससे क्रॉप हमारा क्या होगा, अच्छा ग्रो करेगा। अब देखिए डंग की बात थी, यहाँ जो वाटर में डंग जो है इन्वायरमेंट को दूषित कर रहा है, लेकिन यहाँ जो फील्ड में डंग है इन्वायरमेंट को दूषित नहीं कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लैंड को फर्टाइल कर रहा है। अगर लैंड को फर्टाइल कर देता है, हमारा फसल जो अच्छा होता है, then we will use less insecticide and pesticide। हम लोग कम मात्रा में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, और अगर कम मात्रा में करेंगे तो इन्वायरमेंट भी क्या होगा, कम दूषित होगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड यूज इन एग्रीकल्चर। देखते होंगे कि अभी भी मार्केट में तो उपलब्ध है बंदा गोभी, फूल गोभी। जब फूल गोभी का सीजन होता है तो हमें बहुत छोटा छोटा मिलता है, ऐसा मिलता है, छोटा मिलता है। लेकिन अगर हम एक मंथ और वेट कर लेते हैं तो लगता है कि तरबूजा मिल रहा है। तो क्या नेचुरली उतना बड़ा हो गया? नहीं, वी आर यूजिंग द मेडिसिन
हम लोग दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। एंड इफ वी आर यूजिंग मेडिसिन टू बी आवर वेजिटेबल्स, सब्जियों को बड़ा करने के लिए, इसका मतलब क्या? हम लोग सॉइल को दूषित कर रहे हैं, हम लोग मिट्टी को दूषित कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सॉइल पॉल्यूशन के साथ साथ आदमी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। अब वो दवाई वाला सब्जी खाएगा तो क्या होगा? आगे भी दवाई पे जिंदा रहेगा ना? ऐसा तो है नहीं कि दवाई पे जिंदा नहीं रहेगा। अभी तक हमने सिर्फ एक ऐसा वेजिटेबल देखा है जो बिना फर्टिलाइजर का आता है, और अभी उसका सीजन चल रहा है। मूंगा, मुनगा, सलजम, मुनगा, कोई फर्टिलाइजर नहीं, एक और है कटहल। कटहल भी पड़ता है ना? कटहल। तो ये ऐसे हैं जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। नहीं तो हम लोग देखते हैं, जैसे जस्ट सपोज है हम लोग अपने घर में कोई मानिए कि वेजिटेबल को ग्रो किए, और ऑन द सेम टाइम एक जो किसान है उसने अपने फील्ड में वेजिटेबल को ग्रो किया, दोनों का सेम वेजिटेबल। हमारा वेजिटेबल फल देने में समय लेगा, तब तक उसका 2 बार फल दे देगा। हाउ? क्या उसके मिट्टी में जरा गुड्डी लगाई है? नहीं। He is using the medicine to get more production from that plant to get more benefit. वो मेडिसिन का प्रयोग कर रहा है उस प्लांट पर ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो बेनिफिट भी क्या होगा? ज्यादा हो। उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट को फायदा नहीं हो रहा है। तो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट बाय यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर भी क्रॉप को उतना ही मात्रा में देना चाहिए जितना मात्रा में वो लेना चाह रहा हो। अगर हम धान गेहूं कुछ ग्रो करते हैं तो इसमें फर्टिलाइजर देते हैं, फसल हमारा बेस्ट ग्रो हो, अच्छा ग्रो हो। अगर ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये आता है कि फसल जल जाता है, फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कुछ इफेक्ट है, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। जस्ट आस्किंग मी, आई थिंक इशू एंड कंसर्न क्लाइमेट चेंज के माध्यम क्या है, क्लाइमेट चेंज का सोर्स क्या है? ग्लोबल वार्मिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी असर पड़ेगा। इंक्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये जनसंख्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटने का तो नाम ही नहीं लेती। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। अब फॉसिल्स फ्यूल, अभी हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था, तो एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत ये बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल भी आते हैं। अगर हम इसे जलाते हैं किसी भी फ्यूल को, और अगर ये सही तरीके से बर्न नहीं कर पाता है, then I think it will release carbon monoxide. Am I right? Importance of environmental education for student, क्या importance है? तो now according to the times rapidly finish my topic. To create sense of responsibility, बच्चों के मन में, जहन में environment के प्रति responsibility जागरूक करनी चाहिए कि उसकी क्या। और ये जो टॉपिक है, in the beginning of this session I have
conclude this topic. Multidisciplinary nature of environment, ethics, psychology है, biology है, chemistry and forensic science है, oceanography है, zoology है, archaeology है, क्या है, anthropology है, sociology, history, politics. These all are the multidisciplinary of the nature. Method of environmental education. What are the method? So here are first method which we have discussed in the previous day session about the discussion method. Project method, problem solving method, observation method and dramatization method and field trip. These all are the method by which we can save our environment. डिस्कस करके प्रोजेक्ट देकर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाकर लाओ जिसमें environment डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं. प्रॉब्लम फील्ड ट्रिप मीन्स जगह जगह हम भ्रमण करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे. 10 बच्चे जागरूक हैं, जगह जगह जाकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे तो उस जगह के 10 नहीं 5 बच्चे जागरूक होंगे, फिर जाएंगे फिर कहीं 2 बच्चे जागरूक होंगे. इस तरह से चेन बनाते चलेंगे और बच्चों को अवेयरनेस करेंगे. Why environmental education is need of the day? आज के समय में environmental education की क्या आवश्यकता है? तो just I have discussed it previously. पहले इसको बता चुके हैं कि आज के समय में environment को बच्चे को environmental education के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? Am I right, Sonali ma'am? And the last, I am sharing a video how human beings destroy the beautiful earth. Okay, now thank you for listening.